سعودی عرب سے ملتان آنے والے 5 مسافروں میں کرونا کی تصدیق ہو گئی۔ سعودیہ کی پرواز SE800 کے متاثرہ مسافر قائد اعظم اکیڈمی قرنطینہ سینٹر منتقل کر دیے گئے۔ جنوبی پنجاب میں مزید 192 افراد کرونا کا شکار، ملتان 51، سرگودا 21، بہاولپور اور رحیمیہ خان میں 19 کیسز رپورٹ ہوئے۔ مظفر گڑھ 13، ڈیجو خان 11، میاں بالی 10، خانیوال اور خوشاب میں 8 کرونا مریض سامنے آ گئے۔ لیا 7 اور راشد پور میں 6 افراد کرونا کا شکار۔ بھاول نگر، بھکر اور لودھرا میں 5 نئے کیسز رپورٹ۔ بہاڑی میں 4 نئے مریض سامنے آ گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سعودی عرب سے ملتان آنے والے 5 مسافروں میں کرونا کی تصدیق۔ سعودیہ کی پرواز SE800 کے متاثرہ مسافر قائد اعظم اکیڈمی قرنطینہ سینٹر منتقل کر دیے گئے ہیں۔ ایک اور بریکنگ ڈے آپ کو، پنجاب میں کرونا ویکسین کی خوراکیں ضائع ہونے کا انکشاف۔ پنجاب میں 38,557 ویکسین کی خوراکیں ضائع ہو گئیں۔ سرکاری اسپتالوں، ویکسینیشن سینٹرز پر 38,000 خوراکوں کا ضیاع ہوا۔ اسپتالوں کو دی جانے والی ویکسین کا ضیاع سب سے زیادہ ہوا۔ اسپتال میں بیشتر ویکسین کی خوراکیں ریکارڈ سے ہی غائب۔ ضائع ویکسین کی ایک وجہ مناسب درجہ حرارت کی عدم فراہمی ہے۔ کرونا ویکسین کے ضیاع پر محکمہ صحت خاموش تماشائی بن گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پنجاب میں کرونا ویکسین کی خوراکیں ضائع ہونے کا انکشاف ہوا۔ پنجاب میں 38,557 ویکسین کی خوراکیں ضائع ہوئیں۔ سرکاری اسپتالوں، ویکسینیشن سینٹرز پر 38,000 خوراکوں کا ضیاع ہوا۔ اسپتالوں کو دی جانے والی ویکسین کا ضیاع سب سے زیادہ ہوا۔ اسپتالوں میں بیشتر ویکسین کی خوراکیں ریکارڈ سے ہی غائب رہیں۔ ضلع ویکسین کی ایک وجہ مناسب درجہ حرارت کی عدم فراہمی ہے۔ ڈیجو خان سے خبر دیں آپ کو، جہاں پر کرونا ویکسینیشن کروانے والوں کا ریکارڈ آن لائن نہیں ہو سکا۔ ویکسینیشن کروانے والے افراد ریکارڈ آن لائن کروانے کے لیے لائنز پر لگنے پر مجبور ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں کرونا ویکسینیشن سینٹر پر ویکسینیشن ریکارڈ آن لائن کروانے والوں کی لائنیں لگی رہیں۔ ایک ماہ قبل ویکسینیشن کروانے والوں کا ریکارڈ بھی آن لائن نہ ہو سکا، جس پر شہری انتظامیہ سے خاصے نالاں دکھائی دیے۔ پچھلے مہینے کی 11 تاریخ کو میں نے لگوائی تھی، ابھی تک وہ درج نہیں ہوئی ہے۔ وہ اندر جاتے ہیں، کوئی کہتا ادھر جاؤ، کتنے دن ہو گئے آتے ہیں، درج ہی نہیں ہوتی ہے۔ ہفتہ ہو گیا ہے، کبھی 2-3 بار آئے ہیں، وہ جدھر جاتے ہیں وہ بولتے ہیں ادھر جاؤ، وہ بولتے ہیں ادھر جائے، بس آج جا کے ہم تنگ ہو گئے۔ انچارج کرونا ویکسینیشن سینٹر ڈاکٹر شان مصطفیٰ کا کہنا تھا کہ جن لوگوں کی کرونا ویکسینیشن کی جا رہی ہے ان کا ریکارڈ آن لائن کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ ریکارڈ آن لائن نہ ہونے کا شکوہ کر رہے ہیں ان کا ڈیٹا ویریفائی کر کے ریکارڈ آن لائن کر دیا جائے گا۔ جو لوگ آن لائن جن کا پہلے ڈیٹا نہیں ہوا، ممکن نہیں ہے کہ ایسا نہ ہوا ہو، تو پھر ہم لوگ ان کا ریکارڈ لے لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں، اگر ویریفائی ہوتا ہے تو پھر ان کو آن لائن کر دیتے ہیں، ورنہ نہیں۔ انچارج کرونا ویکسینیشن سینٹر کا کہنا تھا کہ ویکسینیشن سینٹر پر آنے والے جن افراد کا ریکارڈ آن لائن نہیں ہو رہا وہ شکایت کاؤنٹر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ کیمرہ مین ریحان علی کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ خبر یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم کا کل بہاولپور کا دورہ متوقع ہے۔ وزیر اعظم کے ترجمان شہباز گل اور صوبائی وزیر زراعت حسین جہانیہ گردیزی بھی حکومتی کارکردگی اور وزیر اعظم کے دورہ بہاولپور کے مقاصد بتائے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا کل بہاولپور کا دورہ متوقع ہے۔ وزیر اعظم کے ترجمان شہباز گل اور صوبائی وزیر زراعت حسین جہانیہ گردیزی نے حکومتی کارکردگی اور وزیر اعظم کے بہاولپور کے دورے کے مقاصد بتائے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے ترجمان شہباز گل نے بہاولپور میں پریس کانفرنس بھی کی۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ کے ترجمان شہباز گل نے بہاولپور میں پریس کانفرنس کی اور کہا کہ وزیراعظم عمران خان بہاولپور میں کسان کنونشن میں شرکت کریں گے۔ کنونشن میں عوام اور کسانوں سے متعلقہ معاملات پر خطاب کریں گے۔ بلکہ پرائم منسٹر عمران خان نے خود کسانوں سے ڈائریکٹلی بارہا کنسلٹیشن کی اور اس کے بعد جو کسانوں کے لیے ایسی پالیسیز تھیں جس کی ضرورت تھی ان میں سے بہت ساریوں پر کام ہو چکا ہے شروع، جن پہ نہیں ہوا ابھی ان کی پلاننگ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ان پہ بھی کام شروع ہوگا۔ صوبائی وزیر زراعت حسین جہانیہ گردیزی نے بتایا کہ موجودہ حکومت نے کسانوں پر خاص توجہ دی۔ زراعت کا پہلی دفعہ سوچا گیا۔ وزیراعظم عمران خان کچھ کسانوں کو کسان کارڈ بھی دیں گے۔ واحد حکومت ہے جس نے ایگریکلچر کے
सेक्टर पे सही मानों में तवज्जो दी है। बातें तो होती रहती हैं, रीढ़ की हड्डी एग्रीकल्चर को हर हुकूमत बुलाती रही है, लेकिन पहली बार रीढ़ की हड्डी की सेहत का ख्याल किया गया और रीढ़ की हड्डी पे कितना वजन लादना है ये इसका ख्याल किया गया है। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद पहली बार बहावलपुर का दौरा कर रहे हैं, जिनके इस्तकबाल के लिए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी बहावलपुर पहुंच चुके हैं। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद ज़हीर रोही, बहावलपुर। शहर औलिया की सकाफत और तारीख को महफूज बनाने के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने म्यूजियम के लिए किला कोहना कासिम बाग पर 10 कनाल अराजी की मंजूरी दे दी है। कदीम मुल्तान शहर की तारीख को महफूज बनाने के लिए म्यूजियम तामीर किया जाएगा, जिसके लिए मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने किला कोना कासिम बाग पर 10 कनाल अराजी की हतमी मंजूरी दे दी है। तो इसमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने यह ख्वाहिश का इज़हार किया था कि मुल्तान में एक म्यूज़ियम होना चाहिए, पर उस पर हमने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह स्कीम जो है वो अप्रूव हो गई है और इसमें ख़ुसूसी तौर पर इंटरेस्ट ली है बाबर हयात तारड़ साहब ने, SMBR साहब ने। उन्होंने 10 कनाल अराजी जो है वो कल उन्होंने उसकी अलॉटमेंट कर दी है। अब ये बहुत जल्द ये हमारी स्कीम जो है ऑन ग्राउंड स्टार्ट हो जाएगी। मंसूबे पर 80 मिलियन से ज़ायद लागत आएगी। इस हवाले से कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि ऐसे घरानों से अपील करेंगे जिनके पास शहर औलिया की तारीख बारे कीमती नवादरात मौजूद हैं, वो इनको म्यूजियम की जीनत बनाएं। मेरी तमाम यहाँ पर जो कदीमी फैमिलीज़ हैं, जो लोग हैं, मेरी उनसे ये दरख्वास्त होगी कि जब ये म्यूज़ियम बन जाए तो आपके पास जो भी घर में तारीख़ी चीज़ें जो आपने संभाली हुई हैं वो हमें दें, वो म्यूज़ियम को देंगे। हम उनके नाम के साथ और उनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हिस्ट्री के साथ हम म्यूज़ियम में उसको हम प्रिजर्व करेंगे। मुल्तान में म्यूजियम का मंसूबा 1 साल के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। कैमरामैन एडी नवाज के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। मुल्तान में तनख्वाहों की अदम अदायगी और बोनस न मिलने पर वीरा बस सर्विस के ड्राइवर्स ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इंटरसिटी बस सर्विस चलाने से भी साफ इनकार कर दिया। तनख्वाहों में इजाफा और बोनस न देने के मामला पर वीडा बसों के ड्राइवर्स ने मुल्तान में हड़ताल कर दी। मुजाहिरीन ने डेराडा चौक पर एहतजाज किया और मास ट्रांजिट अथॉरिटी के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि दीगर शहरों में ड्राइवर्स को बोनस मिल रहा है, लेकिन मुल्तान में बोनस मिला और न तनख्वाहों में इजाफा किया गया। 4 साल में माशाल्लाह हमने इनका कोई भी ऐसा ज़ाती नुकसान अपनी तरफ से नहीं किया और हमने ये अपनी गाड़ी समझ के, इसको रोज़ी समझ के चलाया है। लेकिन इन लोगों ने हमारा चूल्हा बंद किया है, हमारे बच्चों का मुंह से निवाला खींच लिया है और ना ही हमारे साथ कोई इन्होंने अच्छाई की है कि हमारी तनख्वाह जो 1 महीने में होती है वो 2-2 महीने लगा देते हैं। इंटरसिटी बस सर्विस मुअत्तल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एहतजाजी ड्राइवर्स का कहना था कि महंगाई के बायस कम तनख्वाहों में गुजारा मुमकिन नहीं हो रहा। हुकूमत को ख्याल करना चाहिए कि गरीबों के लिए चले वीडा बस चलती थी, सस्ते किराए में हर कोई सफ़र कर लेता था। किसी ने गुलगत जाना होता है, किसी ने कहीं जाना होता है। अब मैं खड़ा हूँ, मैंने बिहाड़ी चौक जाना है, बहुत परेशानी का सामना हो रहा है। मुजाहिरीन के एहतजाज पर DC मुल्तान अली शहजाद ने नोटिस लिया और AC सिटी ख्वाजा उमैर को मामला हल करने का टास्क सौंपा। AC सिटी का कहना है कि मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कर लिए हैं। तमाम ड्राइवर्स की तनख्वाहें जारी कर दी गई हैं। तनख्वाहें बुध के रोज तक तमाम ड्राइवर्स के अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएंगी। वीडा बस सर्विस बुध के रोज रूटीन के मुताबिक चलेगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ यासिर मजीद, रोही, मुल्तान। दूसरी जानिब मुल्तान में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में तैनात निजी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स 3 माह की तनख्वाहों से महरूम। अदम अदायगी पर अस्पताल के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में तैनात निजी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड 3 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं, जिनकी अदम अदायगी पर अस्पताल के बाद अल उमरा सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें हमारी तनख्वाहें अदा करो के नारे लगाए गए। मुजाहिरीन का कहना था कि 3 माह गुजरने के बावजूद हमें तनख्वाहें की अदायगी नहीं की जा रही। एक तो हमारी तनख्वाह सिर्फ 12,000, उसमें हम घर कैसे मैनेज करें? अगर मैनेज भी करें तो 2-2 महीने की, 3-3 महीने की तनख्वाहें रुक जाती हैं। कहाँ मैनेज करें? राशन मैनेज करें, बिल मैनेज करें। जब मीटर कट जाएगा तो उसको क्या मैनेज कर सकते हैं? किस तरह से मैनेज करें? जब भी इनसे बात करें तो ये कहते हैं
बस दे देंगे 2 महीने कुछ भी नहीं दिया। सिक्योरिटी गार्ड का कहना था कि अल उमरा कंपनी के 68 मुलाजमीन हैं जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, जबकि कार्डियोलॉजी इंतजामिया के मुताबिक कंपनी को हमारी तनख्वाहें अदा कर दी गई हैं, जबकि अस्पताल में हमारा दाखिला ममनू हो गया। हमारी मोटरसाइकिलें भी अस्पताल के अंदर खड़ी हैं। तकरीबन तीसरा महीना शुरू हो गया, अभी तक हमें तनख्वाह नहीं मिली। छोटे छोटे बच्चे हैं, तनख्वाह का मुतालबा करते हैं तो वो कहते हैं जी है ना वो चेक ले गए हैं, ये ले गए हैं और वो ले गए। एमएस साहब कहते हैं जी चेक हमने इनको दे दिया कंपनी वालों को, और वो कहते हैं कि जी हमें अभी तक चेक नहीं मिला। एहतजाज करने वाले सिक्योरिटी गार्ड ने जिले इंतजामिया और हुकूमत पंजाब से अपील की कि हमारा मसला फौरी हल करा के अदायगी यकीनी बनाई जाए ताकि इनकी मुश्किलात जरा कम हो सकें। तनख्वाहें ना मिलने और नौकरी से निकाले जाने के बाद कार्डियोलॉजी के सिक्योरिटी गार्ड अल उमरा कंपनी के खिलाफ सरापा एहतजाज है और हुकूमत पंजाब से मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी तनख्वाहें अदा की जाएं ताकि उनकी मुश्किलात में कमी वाक़ई हो सके। कैमरामैन एडी नवाज के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। रहीम यार खान में सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी इंसानी हकूक और इकलियती अमूर महेंद्र पाल सिंह ने भोंग में गणेश मंदिर का दौरा किया और हिंदू बरादरी के साथ इजहार यकजहती किया। रहीम यार खान में सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी महेंद्र पाल सिंह ने ज़िले सदर PTI जफर इकबाल वड़ाइच, PTI रहनुमा सज्जाद वड़ाइच, डिवीजन जनरल सेक्रेटरी PTI इकलियती विंग चौहान के हमरा भोंग में गणेश मंदिर का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद कलीम यूसुफ ने सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी को मंदिर हमले के बाद उसकी ताज़ीन और आराइश और हिफाजत के लिए किए जाने वाले इक़दाम की ब्रीफिंग दी। मंदिर हमले में मुलव्विस शरपसंदों की गिरफ्तारी के बारे में भी आगाह किया गया। महेंद्र पाल सिंह ने गणेश मंदिर की कमेटी और हिंदू बरादरी की सरकर्दा शख्सियात से मुलाकात की। कहा कि मंदिर पर हमला अफसोसनाक वाक़या है। वज़ीर-ए-आज़म, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों के बराबर के हकूक़ हैं और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। सूबाई वज़ीर मादनियात हाफिज़ अम्मार यासिर ने मियांवाली के इलाके मकड़वाल में माइंस लेबर वेलफेयर अस्पताल और माइंस गर्ल्स प्राइमरी स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मक्कड़वाल में सूबाई वज़ीर मादनियात हाफिज़ अम्मार यासिर ने माइंस लेबर वेलफेयर अस्पताल और माइंस गर्ल्स प्राइमरी स्कूल का इफ्तिताह किया। इस मौका पर सेक्रेटरी मादनियात पंजाब आमिर गोंदल और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर मादनियात हाफिज़ अम्मार यासिर का कहना था कि अस्पताल आने वाले मरीजों को तमाम तर सहूलियात दस्तयाब होंगी। मक्कड़वाल जहाँ ज़िला मियांवाली में 5000 मजदूर और ख़ास करके मक्कड़वाल के अंदर 3000 मजदूरों के लिए हमने एक खूबसूरत हॉस्पिटल दिया है। इसके अंदर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे तमाम सहूलियात भी होंगी, अभी भी इसके अंदर हैं। सूबाई वज़ीर मादनियात हाफिज़ अम्मार यासिर ने बताया कि मियांवाली के 5000 मजदूरों में से 3000 मजदूरों का ताल्लुक मक्कड़वाल से है। गर्ल्स मॉडल स्कूल में मजदूरों के बच्चों को तालीम दी जाएगी। सूबाई वज़ीर मादनियात ने कहा कि मजदूरों की सेफ्टी के लिए जदीद सिस्टम ला रहे हैं। मजदूरों की सेफ्टी महकमा मादनियात की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कंप्यूटराइज ट्रैकिंग लेके आ रहे हैं, ये पहली मरतबा हो रहा है कि पूरा निज़ाम डिजिटल होगा और इंशाल्लाह मज़दूर की सेफ्टी तो सबसे पहले है। और इसके ऊपर तो हमारा डिपार्टमेंट का एक मतलब इसके ऊपर है कि ज़ीरो टॉलरेंस है, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, सबसे पहले मज़दूर की सेफ्टी। सूबाई वज़ीर मादनियात हाफिज़ अम्मार यासिर ने डिप्टी डायरेक्टर माइंस के दफ्तर की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह किया और वापस रवाना हो गए। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। वफाकी इंश्योरेंस मुहतसब पाकिस्तान के वफ्द की मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आमद। एडवाइज़र वफाकी मुहतसब इंश्योरेंस अब्दुल बासित खान ने इंश्योरेंस केसेस पर मुल्तान में अदालत लगाने का फैसला कर लिया। वफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब पाकिस्तान के वफ्द की मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मेंबरान से मुलाकात हुई। एडवाइज़र वफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब अब्दुल बासित खान, सदर मुल्तान चैम्बर ख्वाजा सलाहुद्दीन, नायब सदर मियाँ शफी अनीस शेख, वाइस चेयरमैन इंडस्ट्रियल बोर्ड मियाँ राशिद इकबाल, साबिक सदर चैम्बर मियाँ फजल इलाही शेख, साबिक सदर ख्वाजा यूसुफ, शेख फैसल सईद समेत दीगर मेंबरान ने शिरकत की। एडवाइज़र अब्दुल बासित खान ने कहा कि चैम्बर के जितने इंश्योरेंस केसेस होंगे वो खुद मुल्तान आकर अदालत लगाएंगे। वज़ीर आज़म और सदर वफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब में खास दिलचस्पी ले रहे हैं। इंश्योरेंस फॉर्म पर दस्तखत करने से पहले पढ़ना ज़रूर चाहिए। हमने इनको ये पेशकश की है कि कभी भी किसी सूरत में भी आपके यहाँ जितने हमारे बिजनेस कम्युनिटी के केसेस कभी हों, मैं यहाँ आकर आपके लिए अदालत लगा सकता हूँ, यहाँ आकर आपके लिए बैठ सकता हूँ। सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ख्वाजा सलाहुद्दीन ने कहा कि मुल्तान चैम्बर वफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब के साथ भरपूर तावन करेंगे। एडवाइज़र अब्दुल बासित खान ने यकीन दहानी कराई कि वो केसेस मुल्तान खुद सुनेंगे, जो कि खुश आइंद है।
हमने चैम्बर के बिहाफ पे इनसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ पे अदालत लगाएं, कोर्ट्स लगाएं, ताकि जो SME सेक्टर के छोटे हैं उनको जल्द अज जल्द इंसाफ उन तक पहुँच सके। तकरीब के अख्ताम पर एडवाइज़र वफाकी इंश्योरेंस मोहतसिब अब्दुल बासित खान को एजाज़ी शील्ड दी गई। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। ब्रेकिंग दी आपको वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का दौरा बहावलपुर। वज़ीर आला से PTI वुमेन विंग की रहनुमा सुमैरा मलिक की मुलाकात हुई। मेंबर पंजाब सीड कॉरपोरेशन राना अरसलान खान भी उनके हमरा थे। मुलाकातों में जनूबी पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम समेत लोधरा बहावलपुर के मसाइल पर गुफ्तगू की गई। बहावलपुर में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का दौरा हुआ। वज़ीर आला से PTI वुमेन विंग की रहनुमा सुमैरा मलिक की मुलाकात हुई है, जबकि इस मौके पर मेंबर पंजाब सीड कॉरपोरेशन राना अरसलान खान भी मौजूद थे। मुलाकात में जनूबी पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम समेत लोधरा और बहावलपुर के मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला पंजाब का बहावलपुर में क़याम, मुख्तलिफ वफूद और मुकामी सियासी शख्सियात से मुलाकातें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग की रहनुमा सुमैरा मलिक की वज़ीर आला से मुलाकात हुई है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे महमूद ज़हीर से। महमूद, दौरे के मुतालिक बताएगा। अभी बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब जो है उस्मान बुज़दार बहावलपुर में आज रात से हम पजीर हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कल अपने एक सियासी दौरा पर, मुख्तसर दौरा पर बहावलपुर आएंगे। उनके इस्तकबाल के लिए और उनके साथ मौजूद रहने के लिए मुख्तलिफ तकरीबात और मुख्तलिफ इफ्तार में, उसके लिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बहावलपुर आए हैं। आज उनसे मुख्तलिफ वफूद और मुख्तलिफ शख्सियात ने मुलाकातें की हैं, जिनमें सुमैरा मलिक PTI वुमेन विंग से हैं और राना अरसलान है, मेंबर सीट पंजाब कॉरपोरेशन है। उन लोगों ने मुलाकातें की हैं, जिन्होंने मुलाकात में इंदिया दिया है कि जनूबी पंजाब के मसाइल को हल करने का मुतालबा जो आज से पूरा नहीं हुआ था पिछली साबका हुकूमत में, वो पूरा किया गया है और जनूबी पंजाब के मसाइल को हल किया जाएगा। महमूद ज़हीर आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान का 19वां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास चेयरमैन PHA एजाज हुसैन जजुआ ने इजलास की सदारत की है। कल्चर अथॉरिटी मुल्तान के हेड ऑफिस में 19वां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास हुआ, जिसकी सदारत चेयरमैन PHA एजाज हुसैन जंजुआ ने की। इजलास में पेश होने वाले 14 में से 9 एजेंडों को मंजूर कर लिया गया। एक अरसे से मुलाजमीन का यूटिलिटी अलाउंस का मामला ताहाल हल न हो सका। चेयरमैन PHA का कहना था कि मुलाजमीन के यूटिलिटी अलाउंस का मामला भी जल्द हल हो जाएगा। उसमें शर्त ये सिर्फ रखी गई है कि आप एक लेटर लिखें इसको अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट को। यहाँ पर रेतली जमीन और गर्म मौसम के बावजूद काश्तकार ने पपीते की फार्मिंग का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। पपीता काश्त करें और सालाना 1 एकड़ से 20 लाख रुपए कमाएं। पपीते को मरतूब मौसम में पैदा होने वाला फल कहा जाता है, लेकिन बहावलपुर के एक नौजवान काश्तकार ने रेतली जमीन और गर्म तरीन मौसम में पपीते की कामयाब फार्मिंग करके सबको हैरान कर दिया। बहावलपुर के तरक्की पसंद काश्तकार राय असद रसूल का कहना था कि उनका पपीते की काश्त का तजुर्बा इंतहाई कामयाब रहा है, जो काफी मुनाफा बख्श भी है। बहुत अच्छा है, मार्केट कर रहा हूँ अब पिछले कुछ अरसे से लाहौर गुजरांवाला मंडी में, तो बड़ा अच्छा, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह रेट भी मुनासिब मिल रहा है। तो बेसिकली अगर सही तरह इसको फार्मर करे और प्रॉपरली मैनेज करे, लुक आफ्टर करे, प्रॉपरली मैनेज करे, तो मेरे ख्याल में इस जैसी फसल कोई नहीं है। राय असद रसूल ने बताया, अगर हुकूमत और ज़रूरी इदारे काश्तकारों की रहनुमाई और मार्केटिंग में मुआवनत फराहम करें तो बहावलपुर में न सिर्फ पपीते की फार्मिंग को बढ़ाया जा सकता है, बल्कि इसकी एक्सपोर्ट में भी इजाफा मुमकिन है। गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई नहीं है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से मकामी सतह पे जो एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं वो ज़ाती ताल्लुक़ की बिना पे वैसे विज़िट करते हैं और वैसे भी वो इलाके में विज़िट करते रहते हैं, तो वो जितना यानी कि हो सकता है वो कोशिश करते हैं गाइड करने की। पपीता जमीन में लगने के 8 माह के अंदर पैदावार देना शुरू करता है और मुसलसल 3 से 5 साल तक लगातार बेहतरीन फल देता रहता है। पपीते का फल न सिर्फ इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद और कारआमद है, बल्कि काश्तकार की मुआशी तरक्की के लिए इंतहाई अहम संगे मील भी साबित हो सकता है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हुकूमत पपीते की फार्मिंग में काश्तकारों को सपोर्ट करे। कैमरामैन फराज हमीद के साथ अतरला शारी, बहावलपुर। दूसरी जानिब बहादुर ज़किया यूनिवर्सिटी में प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर स्कीम के तहत तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का अहवाल इस रिपोर्ट में। प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक व्हील चेयर स्कीम के तहत बहादुर ज़किया यूनिवर्सिटी में 31 खुसूसी तलबा और तालबात में इलेक्ट्रिक व्हील चेयर तकसीम की गई। तकरीब में बहादुर ज़किया यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी समेत जनूबी पंजाब की जामात के तलबा ने शिरकत की। तकरीब की सदारत वाइस चांसलर डॉक्टर मंसूर अकबर कुंडी ने की। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि ये स्पेशल बच्चे, डिफरेंटली एबल
बल्कि स्पेशली एबल्ड बच्चे हमारे इस माशरे के माथे का झूमर हैं आप, हमें आप पर फख्र है। मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने जनूबी पंजाब भर से आए खुसूसी तलबा और तालबात में व्हील चेयर सर्टिफिकेट तकसीम किए। डॉक्टर अख्तर मलिक ने शजरकारी मुहिम के तहत यूनिवर्सिटी में पौधा भी लगाया। जबकि हमारे लिए मतलब हम चल भी नहीं सकते, फिर भी वहाँ स्टडी कर रहे हैं, तो मैं प्राइम मिनिस्टर HEC की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इन्होंने हमारे लिए इतना सोचा और हमें ये सहूलत फराहम की। और मुझे जो है मैनुअल व्हील चेयर से बहुत सारे मसले होते हैं, मुझे अपनी फ्रेंड्स वगैरह का वेट करना पड़ता है कॉलेज जाने के लिए, अपनी क्लासेस अटेंड करने के लिए, लेकिन अब मुझे इलेक्ट्रिक व्हील चेयर मिल गई है तो मुझे बहुत सारी आसानी हो। सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक का कहना था कि खुसूसी बच्चों को आगे बढ़ने देना एक अहम काम है, हुकूमत इस पर काम कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हील चेयर हासिल करने वाले तलबा और तलबात का कहना था कि व्हील चेयर आगे बढ़ने के लिए मुफीद है, अब इनको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद इशफाक कहते हैं कि जिम्नेशियम में 50 लाख की लागत से एक नया बॉक्सिंग रिंग और 100 मिलियन की लागत से स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान के शहरियों को बॉक्सिंग और गर्मियों में ठंडे पानी के स्विमिंग पूल से लुत्फानंदोज होने के लिए डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स इंतजामिया का बड़ा इकदाम सामने आ गया। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद इशफाक ने कहा कि जिम्नेशियम में 50 लाख की लागत का एक नया बॉक्सिंग रिंग मंजूर हो गया, जिससे शहरी न सिर्फ बॉक्सिंग सीखेंगे बल्कि खेल को एंजॉय भी करेंगे। जिम्नेशियम में फैमिली पार्क के करीब ही 195 फुट लंबाई और 195 फुट चौड़ाई का 100 मिलियन की लागत का स्विमिंग पूल भी मंजूर हो गया, जिसके टेंडर्स भी जल्द जारी किए जाएंगे। अनकरीब सितंबर के एंड में या अक्टूबर में बॉक्सिंग रिंग इंस्टॉल होगा और एक इसी किस्म का एक बड़ा मुकाबला इंटरनेशनल लेवल का बॉक्सिंग का कराया जाएगा। नंबर 2, आपने स्विमिंग पूल का कहा। स्विमिंग पूल माशाल्लाह हमारे जिम्नेजियम में 195 फुट का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया जा रहा है। डीएसओ मोहम्मद इशफाक कहते हैं कि माह सितंबर में दोनों प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया जाएगा ताकि खेलों के फरोग से सेहतमंद मुआशरे का कयाम यकीनी बनाया जा सके। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। रहीम यार खान की ईदगाह में सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी महेंद्र पाल सिंह, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुरम शहजाद और DPO असद सरफराज ने पौधा लगाया है। मरकजी ईदगाह को सरसब्ज बनाने के लिए सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी महेंद्र पाल सिंह ने डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुरम शहजाद, DPO असद सरफराज, ज़िली सदर PTI जफर इकबाल बड़ाइश, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, ताजरों और अक़लियती बरादरी के हमरा पौधा लगाया। महेंद्र पाल सिंह का कहना था कि मजहबी इबादत गाह में पौधा लगाकर मजहबी रवादारी और एहतराम का पैगाम दिया है। पाकिस्तान में मुसलमान और अक़लियत सब इकट्ठे हैं। आज ईदगाह में यहाँ पे पाकिस्तान की रहीम यार खान की जो है अक़लियती बरादरी के साथ यकजहती मनाने के लिए मुसलमान भाई सारे, PTI के लोग, ताजर बरादरी सब के सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये सबूत दिया है कि हम पूरा पाकिस्तान अक़लियती बरादरी के साथ है। ज़िली सदर PTI जफर इकबाल वड़ैच का कहना था कि पाकिस्तान का हर बशिंदा पाकिस्तान की आन और शान है। आज महेंद्र पाल साहब स्पेशली आए हैं, हम लोग भूख हाज़िर हो रहे हैं और हम आए हैं अक़लियती बरादरी से मोहब्बत का सबूत देने। मैंने हमेशा हर तकरीब में ये कहा है कि मुझे अक़लियत का लफ्ज़ जो है वो पसंद ही नहीं है। मैंने तो हमेशा ये कहा है कि जिस तरह पाकिस्तानियों के हकूक़ हैं दूसरे पाकिस्तानियों के, उसी तरह अक़लियतों के हकूक़ है। ये हमारे कायद का भी कहना था, कायद आज़म का, ये हमारी पार्टी के मंशूर में भी है, इमरान खान भी यही कहते हैं, हमारा आइन भी यही कहता है। मरकजी ईदगाह को सरसब्ज बनाने के लिए ताजिब बरादरी अपनी मदद आपके तहत पौधे लगा रही है। भोंग वाक़या के बाद ईदगाह में तमाम मकातब फ़िक्र का एक होकर पौधा लगाना यकजहती का पैगाम देना है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। 14 अगस्त की आमद के साथ ही मुल्तान की शाहीन मार्केट में सब्ज़ हलाली परचमों की बहार आ चुकी है। शाहीन मार्केट मुल्तान में सब्ज़ हलाली परचमों की बहार आ गई। 14 अगस्त करीब आते ही मार्केट पाकिस्तानी परचमों से सज गई। स्टॉल्स पे खरीदारों का रश लग गया, जबकि शहरी जश्न आज़ादी की तैयारियां करने में मसरूफ़ हैं। हम यहाँ पर मुल्तान में बोर्ड गेट आए हैं तो ये तो मार्केट माशाल्लाह झंडों से भरी हुई है और इंशाल्लाह जो आम जो शहरी है मेरे जैसा, वो यही समझता है कि हम जो जश्न आज़ादी है वो दिल खोल कर मनाएंगे और मनोवन तरीके से मनाएंगे और हम मतलब है कि दुनिया को भी एक अच्छा पैगाम देंगे। शहरी कौमी मिली नगमे गुनगुनाते दिखाई दिए। इनका कहना था कि सब्ज़ परचमों से भरी मार्केट बहुत खूबसूरत लग रही है। अपने मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत है। जश्न यौम आज़ादी पर घर को सजाने के लिए चीज़ें खरीदने आए हैं। मज़ा आ रहा है, बहुत झंडे ले रहे हैं, बच्चों के लिए भी ले रहे हैं, घर के लिए भी ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ پورا سال 14 اگست کا انتظار کرتے ہیں کہ گھر اور گلی کو سجائیں گے۔ اس دن پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کا سب کو موقع ملتا ہے۔ کیمرہ مین محمد رضوان کے ساتھ محمد ابراہیم خان، ملتان۔